अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश सिंधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम कौम को, तमाम देखने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत हमेशा के लिए दफन कर दिया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आनी करार देते हुए कौमी असम्बली बहाल कर दी है। कौमी असम्बली के साथ तहरीके अदम एतमाद भी बहाल कर दी गई है। अदालत ने हुकूमत को 9 अप्रैल हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का अजलास बुलाकर वोटिंग कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि अगर तहरीक अदम इत्मीद कामयाब होती है तो अगले वजीर आजम का इंतखाब करने में रुकावट न डाली जाए। अदालत ने सदर, वजीर आजम और वफाकी वज़रा को तमाम गैर आईनी इक़दाम से रोक दिया है। अदालत ने निगरान हुकूमत के लिए सदर के तमाम अहकामात भी गैर आईनी करार दिए गए। बहुत सारी दूसरी बातें इस फैसले में लिखी हैं जो कि एक मेरे ख्याल में तारीही फैसला है। इससे बेहतर फैसला आ भी सकता था, हो भी सकता था, लेकिन मौजूदा हालात में इससे बेहतर फैसला मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। जो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे उन तहफ़्फ़ुज़ात पर बिल्कुल कान नहीं धरे गए। मैं आपको चाहूंगा कि जो फैसला सुनाया गया उसकी ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊं। मेरे साथ रहें और ये ऑडियो क्लिप सुनें। On the outcome of our judgment unanimously. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. For detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or otherwise, these matters are disposed of in the following terms. The ruling of the Deputy Speaker of the National Assembly, given on the floor of the House on 3rd of April 2022, in relation to the resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister under Article 95 of the Constitution, for which notice had been given by the requisite number of members of the Assembly on 8/3/22 and in relation to which leave was granted to move the resolution on 28/3/22, and the detailed reasons for the ruling released subsequently and concurred by with the Speaker are declared to be contrary to the Constitution and the law and of no legal effect, and the same are hereby set aside. In consequence of the foregoing, it is declared that the resolution was pending and subsisting at all times and continues to so remain pending and subsisting. In consequence of the foregoing, it is declared that at all material times the Prime Minister was under the bar imposed by the explanation to Clause 1 of Article 58 of the Constitution and continues to remain so restricted. He could not therefore have at any time advised the President to dissolve the Assembly as contemplated by Clause 1 of Article 58. In consequence of the foregoing, it is declared that the advice tendered by the Prime Minister on or about 3 April 2022 to the President to dissolve the Assembly was contrary to the Constitution and of no legal effect. In consequence of the foregoing, it is declared that the order of the President issued on or judgment unanimously. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. For detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or otherwise, these matters are disposed of in the following terms. The ruling of the Deputy Speaker of the National Assembly, given on the floor of the House on 3rd of April 2022, in relation to the resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister under Article 95 of the Constitution, for which notice had been given by the requisite number of members of the Assembly on 8/3/22 and in relation to which leave was granted to move the resolution on 28/3/22, and the detailed reasons for the ruling released subsequently and concurred by with the Speaker are declared to be contrary to the Constitution and the law and of no legal effect, and the same are hereby set aside. In consequence of the foregoing, it is declared
that the resolution was pending and subsisting at all times and continues to so remain pending and subsisting. In consequence of the foregoing, it is declared that at all material times the Prime Minister was under the bar imposed by the explanation to Clause 1 of Article 58 of the Constitution and continues to remain so restricted. He could not therefore have at any time advised the President to dissolve the Assembly as contemplated by Clause 1 of Article 58. In consequence of the foregoing, it is declared that the advice tendered by the Prime Minister on or about 3 April 2022 to the President to dissolve the Assembly was contrary to the Constitution and of no legal effect. In consequence of the foregoing, it is declared that the order of the President issued on or about 3rd of April 2022 dissolving the Assembly was contrary to the Constitution and of no legal effect, and it is hereby set aside. It is further declared that the जी हाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब जी, ये हमने कोशिश की थी कि इसको हम जरा, वो ऑडियो हमारे पास आया था तो उसको हमने वीडियो में कन्वर्ट करके ताकि लोगों को हम सुना सके, बता सके कि जज साहब ने जो फैसला किया है। तो जज साहब ने ये बड़ा, मेरे ख्याल में जी एक तारीही फैसला है खान साहब। और देखें, कानून की हुक्मरानी, लॉ की हुक्मरानी जो है ना, वो बहुत जरूरी है। बड़ी देर से आए, बड़े देर बाद आए, लेकिन एटलीस्ट आए। ये हमें इस पे मेरे ख्याल में अदलिया पर जो बहुत ज्यादा उंगलियां उठती थी, इल्जाम लगते थे, अब करने वाली, अभी मैंने अहमद नूरानी का ट्वीट पढ़ा है, उनका ट्वीट, अब मैं अब कहें तो इजाजत हो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, अदलिया इतनी भी आजाद नहीं है, क्योंकि इस वक्त फौज को यही सूट करता था, तो वही फैसला आया जो फौज को सूट करता था। ये उनका वो अभी ट्वीट है। मेरे ख्याल में पॉजिटिव बात यह है कि इस वक्त फौज को जरूरत थी या नहीं जरूरत थी पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के आइन में, क्योंकि लहू लहान जो आइन था ना, वो चलकर खुद अदालत में गया। देखें जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं मतलब कि मेरा हाल देखें, इन्होंने मेरा कर क्या दिया है। मेरे तो मुंह पे मार मार तमांचे मुझे लाल कर दिया है, जख्म में छुरियां मार मार मेरा पेट फाड़ दिया है। मेरा मतलब कानून का, तो कानून की जो बहाली है, जो लॉ की सॉरी आपकी बहाली है, वो सबसे अहम और बड़ी खबर ये है। दूसरा खान साहब, इसमें चीज में एक और ऐड करता जाऊं, आने वाले वक्त में शायद वेट किया जा रहा है कि आर्टिकल 6 लगेगी या अदालत जो है वो गिरफ्तार करती इमरान खान साहब को या उनके साथ जो सारे कर रहे थे। अगर फतह मक्का के वक्त भी कुछ इस किस्म का माहौल बना लिया जाता ना जी, कि सबको माफ ना किया जाता, पकड़ धकड़ की जाती आगे, तो शायद हालात आज कुछ और होते। तो मेरे ख्याल में बड़ा दिल करके इनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि 3-3.5 साल इमरान साहब यही कुछ तो करते रहे हैं जो अभी आप चाहते हैं कि अपोजिशन करे या आपकी अदालत करे कि इमरान खान को पकड़े, जेल में डाले, इनके तमाम साथियों को पकड़े। 1.5 साल 3 साल खान साहब यही तो करता रहा इमरान खान। और अगर आपने भी अभी हुकूमत मिली नहीं है, 2 दिन के बाद अल्लाह ताला की जात खैर करे, अपोजिशन को हुकूमत मिल जाए, और अगर आपने भी यही कुछ करना है, तो फिर आप में और इमरान खान में फर्क क्या रहेगा? जरा मक्का वाली फतह को ज़हन में रखकर जरा प्लीज सबसे पहले इस पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने में शोर है कि आने वाली हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर या अभी जैसे ही ये हुकूमत है पकड़ कर इनको अंदर डाल दे। आप क्या फरमाएंगे सर इस पे? सर, जिस तरह से पाकिस्तान का जो माहौल है या पाकिस्तान की जो तारीख है, उसमें इस तरह का एहसान जो है बाद में आपके बच्चों को बिल्कुल फतह मक्का के नतीजे में करबला जो कायम हुई थी वही देखना पड़ेगा। यकीन करिए कि अगर आपका दुश्मन आला नस्ल का है और उसका मिजाज इंसाफ का होता है, तो आप जब उसके साथ दरगुजर, माफी और इस्तेहकाम की बात करते हैं तो वो भी आपको वापस वही देता है। मगर जब आपका दुश्मन कमीना हो, आपका दुश्मन रजील हो, प्रॉक्सी हो, चोरों का दादा हो और वो भाषण बड़े बड़े करे, जब आप उसके साथ नेकी करेंगे तो वो कहेगा कि देखा मैंने इसको बेवकूफ बना लिया और अब मैं आइंदा कभी ये गलती नहीं करूंगा कि इसके सामने मुझे पेश होना पड़े। वो आपकी नस्लें मिटा देगा। इस वक्त भी जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को पीटीआई के लोग
जब कहते हैं कि जी वो भाग गए हैं और माज़अल्लाह ऐसे अल्फाज यूज करते हैं जो हम अपने मुंह पर नहीं ला सकते, तो हम आप कहते हैं हुकूमत तुम्हारी थी, तुमने जाने क्यों दिया। अब वो क्या कहते हैं, अंदर दिल में उनके होता है कि यार वाकई ये सही कह रहा है, हमें इनको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि दोबारा हम इनके सामने आ रहे हैं। अगर ये इन्होंने इस प्रॉक्सीइज्म को और इस खच्चरिज्म को, इस डंकीइज्म को यहां पर अदलिया के कंधे पर बंदूक रख कर और इंसाफ परस्ती से खत्म नहीं किया इन लोगों को सजाएं आइन के अंदर हैं देने के, तो यकीन करें ये फिर पैसे की ताकत पर ताले आजमाओं के साथ मिलकर हमारी नस्लों को फिर कैद करेंगे और फिर नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखना, ये हम आसमानी तारीख और अल्लाह के हुक्म और सीरत रसूल पर कोई बात कर ही नहीं सकते। हम अपने हालात में देखें कि अगर हमने इनको जाने दिया कानून के, मुझे अभी भी यकीन है कि यहाँ कोई ना कोई सौदा जरूर हुआ है, इनको कोई सेफ एग्जिट या पैसेज दिया गया है, क्योंकि इनको आपको पता ही है ये वांटेड है बहुत सारी जगहों पे, कंफर्म नहीं है मगर बाहर की दुनिया भी इन्हें ढूंढ रही है। मुझे शक है कि ये दोबारा एक्टिव होंगे और पैसा अभी तक डॉलर फैसला कर रहा है। आज डॉलर 190 का हुआ है, 87 तक जी। दोबारा आएंगे सर ये लोग, ये रिपीट होगी दोबारा तारीख, क्योंकि हम इसको कर्ब नहीं कर रहे। हम इन्हें वो सजा जो इनको देखें, अब ये सूरी साहब जो है, जिनको जो भी आप मर्जी कह लें, क्या इसको 17 खत इसने नहीं पढ़े इलेक्शन कमीशन के कि भैया आपने क्या करना है, वजीर आजम को डायरेक्ट लिखे थे। तो हद जिसको कहते हैं ना, हद क्या कहते हैं उसको, हुज्जत तमाम होना जी। ये इत्माम हुज्जत के नतीजे हैं कि इन्होंने बगावत जरी की है। तो अब अच्छा, अब इससे ये ना हो कि हमारी तवज्जो मुल्क को बचाने से हट जाए। जो स्पेशलिस्ट हैं, जो समझदार हैं, उनके हाथ में इख्तियार दे के मुल्क को बचाओ। मगर यार ये जो प्रॉक्सीइज्म है ना, दूसरे की जंग लड़नी, ये यहीं से खत्म करो। देखें कल वो जो दूसरी मोहतरमा थी डॉक्टर सानिया निश्तर, हार्ट स्पेशलिस्ट, मुल्क छोड़ के चले गई, अमेरिका चली गई, पहुंच गई। आप लोगों के पास ही आना, जिसने आना जाना कहाँ है सर। तो इनके भी शहबाज गिल के बारे में सुबह क्या खबर आ रही है? वो नहीं खबर नहीं, उसने खुद कहा कि मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, लेकिन ये ना सोचना कि मैं भाग रहा हूं। सर हमने सोचना ही नहीं है, हम मानते हैं तू भाग रहा है। नहीं, तो वो बता रहा है कि मैं भाग रहा हूं, लेकिन तुम ना सोचना कि मैं भाग रहा हूं। और ये जो तो मीडिया पे आ रहे हैं, और कल उन्होंने नदीम मलिक साहब के साथ जो इंसल्टिंग रवैया था शिबली फराज साहब का, वो उनको गालियां दे रहे थे जुमलों में। वो जो तर्ज तकल्लुम होता है कि लोग मुझे कहते हैं कि नदीम मलिक सही आदमी नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि नहीं सही है, वो इस तरह गालियां देते हैं ना। जी, वो सही आदमी नहीं है, वो सही आदमी नहीं है, इस तरह उसको कह रहे थे। और शुरू से शिबली साहब को मर्चें लगी हुई थी। पहला लफ्ज उन्होंने कहा नदीम, तो मैं वही समझ गया शिबली साहब आज मतलब पानी, इनका रोजा लगा हुआ है, इनको कुछ और करने वाले हैं अभी। और उसने आगे चलें सर, राजा साहब से भी कमेंट ले लेते हैं। राय साहब, मेरा मानना ये था, या मैं ये कह रहा था खान साहब से, कि बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। पाकिस्तान का जो आइन है वो जीता है, लहूलुहान था। बड़े कुछ 50-60 जब से बना है, पता नहीं क्या क्या खिलवाड़ हो रहा था उसके साथ। तो आज कम से कम तसल्ली हुई है एक आम पाकिस्तानी को कि उसके आइन पर जो जख्म लगे थे किसी हद तक वो भर दिए गए हैं। आर्टिकल 6 का मामला है, मेरा मानना यह है कि अगर आप भी इमरान खान को पकड़ लेंगे, उनके हवारियों को पकड़ लेंगे, तो फिर उनमें और आप में कुछ फर्क नहीं रहेगा। 3.5 साल इमरान खान यही कुछ तो कर रहा है, पकड़ो, अंदर कर दो, डाल दो, आर्टिकल 6 के चक्कर में कम से कम। बाकी मामला जो होंगे करप्शन के आगे की बात है, लेकिन इस मामले में दरगुजर करना चाहिए और मुल्क की अवाम की तवज्जो करना चाहिए, महंगाई से निकालने के लिए, मसाइल से निकालने के लिए। आप क्या फरमाते हैं सर? बहुत शुक्रिया संदेला साहब। सबसे पहले तो आपको, खान साहब को और जितने हमारे सुनने वाले हैं सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को सुरखरू किया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान का आइन जीता है। हालांकि मैं समझता हूँ अभी पूरी तरह तो नहीं जीता, क्योंकि जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए थी। बहरहाल चलें, वो अब जो आने वाली हुकूमत है उस पर शायद ये चला जाएगा मामला। अगर वो सज़ा देना चाहते हैं तो दें, अगर वो इस चीज़ को दरगुजर करना चाहते हैं तो वो करें।
तो वो तो अब आने वाले जो भी हुकूमत है उस पर डिपेंड करेगा। बड़ा ख़तरनाक खेल खेला गया जी पाकिस्तान में, और जिस तरह के हालात चल रहे थे, बल्कि यकीन करें कि एक एक दिन की जो हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, एक एक दिन के 3-3 4-4 रुपए डॉलर ऊपर जा रहा था जी बिल्कुल। और अगर खुदा ना खास्ता ये 1-2 दिन और आगे जाता तो ये 200 को टच कर जाता। आज भी दिन को जो है दिन को मैं आपको बताऊं कि मैंने थोड़े से चेंज करवाना था पैसे, तो वो कह रहे थे जी कि हम डॉलर का जो है ना ट्रेड नहीं कर रहा है, डॉलर एक्सचेंज नहीं आ जाए, क्योंकि डॉलर की प्राइस जो है ना वो इतनी तेजी से ऊपर नीचे जा रही है कि हमने ना उसका तो वो ट्रेड करने बंद कर दिया है। तो ये तो ग्राउंड की सूरत हाल थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह के ये एक अच्छा फैसला आया। उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे जो है आने वाले जो पाकिस्तान के दिन है उसमें रूल ऑफ लॉ होगा, और किसी भी इस तरह के नशई को, पागल इंसान को कोई जुर्रत नहीं होगी कि